So students, as we discussed electrical properties in last chapter, just we have a quick review of recap of that. Actually, in solids, all atomic orbitals of different atoms, they because the atoms are very closely packed in solids, so these atomic orbitals combine together to form, you can say, a large number of molecular orbitals. For the valence electron, अगर हम बात करें तो valence orbitals जो हैं, they form together a kind of band which is known as valence band. And actually in metals, as you know, these free electrons are present in large number. मतलब unpaired electrons बहुत होते हैं, p block और f block element जो हैं, काफी सारे orbitals हैं उनमें. तो it may be partially half valence bond, valence band. This is the valence band. और इसके ऊपर होता है conduction band, that is of जो empty orbitals हैं उनके combination. So here, if these are partially filled band, तो इसी band में electrons का transfer होता है and the electrons can conduct electricity. And if the bands are otherwise filled, तो क्या होता है बेटा, जो conduction band है, जो lower energy वाला है, और higher energy conduction band, and this is the lower energy valence band. ये दोनों band एक दूसरे को overlap कर जाते हैं metals के अंदर, and easily this much energy is available to electrons and they can jump into this band and they conduct electricity. In case of insulators, empty conduction band and filled valence band, they have, you can say, very high energy gap, which is called forbidden zone, जो generally electrons overcome नहीं कर पाते, चाहे आप उनको heat भी कर दो. ठीक है, तो insulators are means they do not conduct electricity in any case, whereas in semiconductor this gap between valence band and conduction band is very small. So these electrons easily overcome this energy gap and they can easily enter into conduction band, hence they conduct electricity. And if we increase the temperature, more and more of electrons will enter in conduction band in order to conduct more electricity. So semiconductors are those solids which have very small conductivity range, but their conductivity increases with increase in temperature. In case of metals, they have very, you can say, large conductivity values, but their conductivity decreases with increase in temperature, because metals के केस में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हैं, और इवन मेटल आयंस उन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के सी के बीच में ही पड़े हुए हैं. तो क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर मेटल्स आयंस का अपना मूवमेंट बढ़ जाता है, उनकी वाइब्रेशंस बहुत फास्टर हो जाती है, एंड in this way they hinder the movement of electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी बढ़ा तो है, बट हिंड्रेंस ज्यादा आ जाती है मेटल आयंस की वाइब्रेशंस के फास्ट होने से. तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी. तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को ओपोज करेंगे. कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को आप इंक्रीज कर सकते हो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट मेटल्स की नहीं. क्लियर. अब उसके बाद हमारे सेमीकंडक्टर्स के लिए चैप्टर में है कि सेमीकंडक्टर्स जो इस तरह के हैं, लाइक मेनली द सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड एज 14 ग्रुप एलिमेंट्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. जब सब्सटेंस को आप उसी प्योर फॉर्म में यूज करो जिसमें उसकी बहुत थोड़ी सी कंडक्टिविटी है, विच कैन बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग टेम्परेचर, बट that much conductivity is of no practical utility. अगर आपने उस फॉर्म में उनको यूज करना है, तो these intrinsic semiconductors cannot be used in practical life because their conductivity is very less. तो आप उसमें एक appreciable amount में अगर हमें conductivity चाहिए, तो उसमें हम impurity add करते हैं. तो we are causing a defect here in these solids by adding certain impurities, and this process is of adding impurities in appropriate amount is called doping. तो डोपिंग कैन बी डन इन टू वेज. इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज ऐड कर सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो. अब हमारे को इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद नया सेमीकंडक्टर बनेगा वो होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, विच इज डोप्ड विद इंप्यूरिटीज. तो डोपिंग में आप ये डायग्राम में देख लो, दिस इज द नॉर्मल सिलिकॉन एटम, silicon crystal, you can say, in which each atom is bonded with 4 covalent bonds, because each silicon atom has 4 valence electron और दूसरे एटम के पास भी 4 हैं. तो नॉर्मल 4 कोवेलेंट बॉन्ड से ये क्रिस्टल लैटिस होता है सिलिकॉन का. ठीक है, तो दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकॉज इट हैज वेरी स्लाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन.
Now, if we replace few silicon atoms in this lattice with some other atoms having more valence electrons, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक 15th ग्रुप एलिमेंट अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें, तो बेटा 15th ग्रुप एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला ग्रुप है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, बट उसमें से जो जनरली यूज होते हैं इम्प्योरिटी डोपिंग करने के लिए वो है फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, एंटीमनी भी डाल सकते हैं बट नाइट्रोजन नहीं ऐड करना, नाइट्रोजन इज अ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। तो नाइट्रोजन और बिस्मथ इज जनरली नॉट एडेड, मेनली फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी, बट बुक्स में फिर भी आपको फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक मिलेगा। ये दोनों एलिमेंट्स में से कोई भी एटम्स के थ्रू आप नॉर्मल लेटिस पॉइंट सिलिकॉन जो है उसको हमने रिप्लेस कर देना है। Each this 15th group element will have 5 valence electron. 4 of them will be used up in normal covalent bonding. 1 electron will be left free and this can move around in this crystal lattice because it remains delocalized. तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट करोगे, it will start conducting electricity. And as this electricity conduction is due to this unpaired electron only. तो electrons are negatively charged, तो negatively charged particles are responsible for conducting electricity. Hence, the name is given N-type semiconductors, which are formed by doping impurity of group 15 element. Whereas in second type of semiconductor, P-type, P means positive here. तो यहाँ पर आपने एक 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी हमने ऐड की है। 13th ग्रुप एलिमेंट बोरॉन इज शोन हियर, बोरॉन डाल सकते हो, उसके अलावा एल्यूमिनियम है हमारे पास, गैलियम है हमारे पास, दीज एलिमेंट्स कैन बी एडेड। So this type of in this type of you can say conductor, what happens, each 13 group element which have 3 unpaired 3 valence electrons will be used up in normal covalent bond formation, but the 4th electron of silicon या germanium जिसमें भी हमने ये impurity mix किया उसके पास अभी भी वो electron bonded नहीं हुआ, this electron is free here, बट इस एटम के पास एक वैकेंसी जनरेट होगी जो यहाँ बॉन्ड नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पर एक होल रह जाता है। आप उसको अज्यूम कर सकते हो कि एक होल आ गया, अदरवाइज एज सच एक जस्ट खाली स्पेस कंसिडर कर लो। अब क्या होता है, जैसे ही आप इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इस होल में in order to fill up this vacancy, और उसके बाद यहाँ एक होल जनरेट हो जाएगा। फिर सपोज आपने इस तरफ एक नेगेटिव फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो नेगेटिव पोल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिच सप्लाई होती है, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इस होल में आएगा, यहाँ से ये होल फिर आगे फर्दर इस तरह से इस डायरेक्शन में फर्दर होल कंडक्ट होते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ इन दिस वे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कंडक्टेड आउट हियर, ठीक है। So this is how, as the hole is responsible for conducting electricity, the hole is basically deficiency of electron means a positive charge. So here this conductor is named as positively or p-type semiconductor, and these n and p-type semiconductors are of high use in daily life. आपने फिजिक्स में अगर इनकी एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी तो डायोड जो रेक्टिफायर्स होते हैं जिसमें मतलब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो करंट प्रोवाइड करते हैं, तो दीज एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक डायोड, सैंडविच बनाते हैं उसके अंदर लाइक एनपीएन हो सकता है या पीएनपी, ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स ट्रांजिस्टर्स प्रेजेंट है हमारे पास डेली लाइफ में। तो ये इस पे ज्यादा डिटेल आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे, बट अदरवाइज दिस इज द यूज ऑफ दीज सेमीकंडक्टर्स, जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम को यूज करते हैं, उसमें डोपिंग करवा के उसको एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। So this is how conductivity of semiconductors can be increased. Clear? और इन कंडक्टर्स को जिनकी जो N और P टाइप बने हैं, they are extrinsic semiconductor. ये टाइप आपको क्लियर होने चाहिए। इंट्रिंसिक वो होता है जिसमें कोई डोपिंग नहीं हुई है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी कम है। Extrinsic semiconductors are those semiconductors in which doping is done in order to increase the conductivity. Clear? So extrinsic semiconductors are of 2 types, P टाइप एंड N टाइप। डायग्राम आप इजीली बना सकते हो, बाकी के सारी 4 वैलेंसी कंप्लीट करके एक एक नॉर्मल लाइन सिंगल बॉन्ड बना दो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, और एक कोई भी एटम अगर आप P टाइप बना रहे हो तो बोरॉन शो कर दो, N टाइप बना रहे हो तो आर्सेनिक शो कर सकते हो या फिर फॉस्फोरस शो कर सकते हो, ठीक है। एक यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देना है, यहाँ एक होल बनाना, तो इन दिस वे यू कैन शो if the question is asked what is meant by N type or P type, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है
what happens when arsenic is doped or silicon is doped with arsenic or when germanium is doped with boron. तो आपको थोड़ा सा एलिमेंट्स के नेम एटलीस्ट याद होने चाहिए जो 13 ग्रुप और 15 ग्रुप के हैं. एडिंग जब भी होगी तो आपको डायरेक्ट ग्रुप का नेम नहीं मेंशन होगा क्वेश्चन में, एलिमेंट का नेम होता है. तो आपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके अगर वो 15th ग्रुप का है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, 13 ग्रुप है तो पी टाइप. क्लियर? So next, the last topic of the chapter is magnetic properties. Magnetic properties actual में क्या होती है कि अगर किसी substance को हम external magnetic field में रख रहे हैं तो वो क्या behavior show करता है. आपको पता है कि electricity जिस चीज में से भी provide होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जहां होते हैं वहां साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है. यू नो दिस थिंग फ्रॉम क्लास 8 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. As you know that electrons in an atom and nucleus itself, protons, they are electrically charged particles because electrons carry a negative charge, protons carry positive charge. But protons are somewhere situated in the nucleus deeply buried, तो उनका इतना effect नहीं, मतलब उनका जो magnetic moment है वो इतना dominating condition में नहीं होता. Rather, because electrons are moving around, दो तरह के movement electron show करते हैं. एक तो वो ऑर्बिट्स में जो घूम रहे हैं वो उनका ऑर्बिटल मूवमेंट हो रहा है और दूसरा वो अपनी स्पिन पर भी घूम रहे हैं, मतलब अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहे हैं. तो स्पिन और ऑर्बिटल मूवमेंट, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है. मींस यू कैन से ईच इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट इनसाइड एन एटम. तो दिस टाइनी मैग्नेट, आप एज्यूम करो कि अगर एक ऐसा सॉलिड आपके पास जिसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे छोटे मैग्नेट्स की फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं, तो अगर आप सोच सकते हो कि जितने अनपेयर्ड क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, आपको पता है पेयरिंग में हमेशा एक ऑर्बिटल में दो ऑपोजिट स्पिन वाले ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उस टाइम पे जब पेयरिंग होती है तो वो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर जो सम आता है वो कैंसिल हो जाता है. इसलिए जिन सॉलिड्स में या जिस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप रहते हैं, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उस एलिमेंट का या उस सॉलिड का कोई मैग्नेटिक, सब्सटेंस का कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा. मींस दो सब्सटेंस विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप उनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे. एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो टाइनी मैग्नेट की फॉर्म में क्यों बिहेव करता है. बिकॉज इलेक्ट्रॉन shows two types of different movements: orbital movement in which it revolves around the nucleus, and second type of movement in which it move or it rotates around its own axis. तो ये दोनों ही जो मूवमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरह का मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करने में. तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ टाइनी मैग्नेट. और इस मैग्नेटिक मोमेंट को, जो होता बहुत स्मॉल है इलेक्ट्रॉन के केस में, but this magnitude is very small and it is measured in the unit called Bohr magneton. इसको short form BM लिखते हैं इस यूनिट को. आप ये यूनिट नहीं भी लगाओ, इसके आगे BM लगा दो, कैपिटल BM. तो this is the unit of this is called magnetic moment की यूनिट. और एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट है that is 9.27 multiplied by 10 raised to the power minus 24 Bohr magneton. अब ये इतना वैसे पूछा नहीं जाता, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है वैल्यू. आपको मेन जो चैप्टर में करना है वो है कि सॉलिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे. ठीक है, तो आपको इसमें 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है सब्सटेंसेस जो सॉलिड फॉर्म में शो करते हैं. कंडक्टिविटी के बेस पे 3 टाइप के सॉलिड्स हैं: सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स. बट ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, substances can be classified into 5 categories: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक तो ये कि इनका मतलब क्या है सबका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो ये टर्म्स आप एक एक दो लाइंस जो है वो बुक में हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये भी 1 वर्ड 1 मार्क क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर से आ जाता है. वैसे वही मैं बता रही हूँ कि इसमें टॉपिक कम है चैप्टर में, बट जो भी टॉपिक्स हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन. स्पेसिफिकली डिफेक्ट्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी पे भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं. डिटेल्ड क्वेश्चन चैप्टर में से आते हैं तो न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आता है, डेंसिटी बेस्ड में भी.
सो पैरामैग्नेटिज्म वैसे आपने 11th में भी थोड़ा बहुत किया है, अभी भी मैंने आपको बताया कि ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ डाइपोल, ठीक है, एक छोटा टाइनी मैग्नेट जो एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। तो अगर ये अनपेयर्ड फॉर्म में है तो अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक मैग्नेट सपोज पड़ी हुई है। अब आपने क्या किया, इस अदरवाइज क्या होता है, वो सब्सटेंस जब ऐसे ही नेचुरली नॉर्मल कंडीशन में आपने उसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तब तक वो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा और मतलब उसमें आपको विजिबल नहीं होगा कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, कोई चीज अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है तो हम उसको कहते हैं कि उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या, जैसे ही आपने इस सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल आप कॉपर आयन के सॉल्ट देख लो या कॉपर सल्फेट का ही अगर हम एग्जांपल ले लें, या फेरिक के कोई सॉल्ट देखें, क्रोमियम के 3 पॉजिटिव सॉल्ट्स अगर कोई हैं, या ऑक्सीजन गैस भी है, अगर आप इनके सैंपल के पास एक नॉर्मल बार मैग्नेट भी लेके जाओगे ना, तो यू विल सी दैट दीज सब्सटेंस, कॉपर सल्फेट के साथ तो बहुत अच्छे से आप एक ग्लास टेस्ट ट्यूब को, एक टेस्ट ट्यूब एक हैंगिंग मतलब सस्पेंडेड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कहीं फिक्स कर दिया, तब तो वो नहीं शो कर पाएगा ना। या आप एक सिंपल पेपर पे कॉपर सल्फेट सॉल्ट डाल दो और उसके पास एक बार मैग्नेट लेके जाओ, यू विल ऑब्जर्व दैट स्लाइटली अट्रैक्शन विल बी शोन बाय दिस कॉपर सल्फेट सॉल्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। रीजन क्या है, कॉपर+2 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो D9 कॉन्फ़िगरेशन में ये आता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव होने के बाद। Fe in +3 स्टेट, फेरिक का एटॉमिक नंबर फेरस का है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल राइट हियर। If we talk about for फेरिक आयन, फेरिक का अगर हम देखते हैं तो इट्स 3D 5 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 3D सॉरी 6 हैं, 26 एटॉमिक नंबर है आयरन का, और 4s में आपके पास 2 है, ये ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट। सो इफ वी नीड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फॉर Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव करने हैं, 4s के 2 रिमूव होंगे, तो यहाँ बचेगा 3d5। ये जो 3d5 है, आपने रूल पढ़ा है दैट, व्हाट इज दैट रूल, आई फॉरगॉट द नेम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ जो एक और रूल है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसके अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में, तो कैसे होंगे, ये पांचों के पांचों अलग अलग एक एक डी ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। तो मींस फेरिक आयन हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 मैग्नेट समझ सकते हो आप इस आयन के पास है, एक आयन के पास। नाउ व्हाट हैपेंस, अदरवाइज क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे ही इनका कोई भी डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड रहते हैं, बट एज सुन एज वी कीप और वी प्लेस दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, या इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दोगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, एंड दे विल लीड अप टू अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि अनपेयर्ड है, इनका अपना अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सब एड अप हो जाएगा, एंड देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। वैसे वो आपको यहाँ पर सिलेबस पे नहीं है, बट चैप्टर जब आप डी ब्लॉक वगैरह करोगे तब है, म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला n मल्टीप्लाइड बाय n+2, इसका स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट n मल्टीप्लाइड बाय n+2, और ये जो n है यहाँ पे ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप फेरिक आयन के लिए अगर निकालो तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 5+2 7 5 35 का स्क्वायर रूट लेने पे जो वैल्यू आती है, उतना मैग्नेटिक मोमेंट फेरिक आयन का है बोहर मैग्नेटन में। तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जैसे कॉपर+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का हम कैसे शो करेंगे पैरामैग्नेटिज्म, हमने 11th में इसका मैग्नेटिक सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास होते हैं, तो दैट इज व्हाई इट शोज नेट मैग्नेटिक effect you can say. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये आयरन की तरह बहुत स्ट्रांग नहीं, जैसे आयरन को आप एक मैग्नेट के पास लेके जाते हो, प्योर आयरन सॉलिड, नॉट फेरिक और फेरस सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हम, आयरन अलग है, आपको पता है ना, मेटल, वो मेटल एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, इवन दूर से ही आयरन पिंस जो आप इजीली एक बार मैग्नेट से अट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। बट पैरामैग्नेटिक
substances show weakly attraction towards a magnetic field. एक external magnetic field में उनको रखोगे तो एक weak attraction show करेंगे, या कि आप उस पर एक्सटर्नल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कॉपर वायर बाउंड करके जैसे हम मैग्नेट्स बनाते हैं, मैग्नेटिज्म करते हैं, तो आप एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक वीक मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये मैग्नेटाइज तो हो जाएंगे उस मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन के जो डोमेन्स या जो डायरेक्शंस है मैग्नेटिक मोमेंट की वो एक ही तरफ अलाइन हो जाती है. बट एज सून एज यू रिमूव दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, they will lose their that orientation and they will become normal substance. मतलब अब वो फिर मैग्नेट, मतलब आप उनको परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. हाँ, आप उनको एक टेम्परेरी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय प्लेसिंग देम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाया जाता है किसी भी सब्सटेंस में. So paramagnetic is due to the presence of one or more unpaired electrons which are attracted by magnetic field. Okay, तो examples ये आप इसके अलावा भी बहुत मिल जाएंगे जिनमें भी unpaired electrons है. All those substance will behave as paramagnetic substance. One important thing is they are weakly attracted by magnetic field. They can be magnetized in a magnetic field, but they will lose their magnetism in the absence of magnetic field. This is very important thing. जो आगे आप ferromagnetic substance पढ़ोगे ना, उनको permanent magnet में हम convert कर सकते हैं और वो बहुत strongly attracted होते हैं towards magnetic. ये difference है एक ferromagnetic और एक paramagnetic substance. Next we move to diamagnetic. Diamagnetic is beta, it's opposite of that paramagnetic का. ऐसे सब्सटेंसेस जो वीकली रिपेल होंगे. अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के जो वैसे तो पेयर अप हुए में इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स का जो वेक्टर सम है वो कैंसिल आउट हुआ है, तो इनका कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, जनरली जीरो ही होता है. बट व्हेन दे आर केप्ट अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके जो इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स है, डाइपोल्स हैं, वो अपने आप को अलाइन कर देते हैं बिल्कुल ऑपोजिट. जैसे आपने इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इनके जो डाइपोल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डाइपोल के फॉर्म में तो प्रेजेंट होते ही हैं अंदर हर एक सॉलिड के अंदर, तो ये डाइपोल्स जो है वो इस तरफ अलाइन हो जाएंगे. तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये भी आप एग्जांपल मतलब कोई एक्टिविटीज भी हैं यूट्यूब में जिसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर को उनको एक सैंपल को एक सस्पेंडेड फॉर्म में लेके उसके पास अगर आप बार मैग्नेट लेके जाओ तो ये रिपल्शन शो करते हैं. तो दीज सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव unpaired electrons, and when they are kept in external magnetic field they are weakly magnetized but in opposite direction, क्योंकि उनके जो डाइपोल्स हैं वो opposite direction में अलाइन हो जाते हैं. ठीक है. एंड अदरवाइज इनका कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब डायमैग्नेटिक होंगे, ये वीकली रिपल्शन शो करेंगे बिकॉज दे आर डाइपोल अलाइन in opposite direction of the magnetic field. That is the reason they are weakly repelled by magnetic field. नेक्स्ट जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ये बाकी इन तीनों टॉपिक्स को जो बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और द प्रॉपर्टीज टर्म्ड एज फेरोमैग्नेटिज्म. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं आपके जो जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन, कोबाल्ट, निकल. ये थ्री तो आपने लोअर क्लासेस में मेटल्स देखे हैं जो आयरन बार मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं. उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स गैडोलिनियम and chromium dioxide, CrO2. These substances are very strongly attracted towards external magnetic field because reason क्या है. और एक चीज और, इनको आप जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जैसे आपने पढ़ा होगा आयरन को मैग्नेट, आयरन नेल से मैग्नेट बनाए, 7th क्लास की साइंस में आई थिंक एक्टिविटी थी कि एक आपने कॉपर वायर से उसको उसके अराउंड कॉपर वायर वाइंड करनी है और उसको फिर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना. तो आप देखोगे कि वो आयरन नेल छोटी छोटी आयरन पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है. और अभी तक तो आप ये देखते हो कि जब तक आपने करंट पास किया तब तक वो एक मैग्नेट बन रहा है, बट एक्चुअली अगर प्योर आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम या क्रोमियम ऑक्साइड की अगर आप मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देते हो, देन दे विल नॉट लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज थिंग्स, दीज सब्सटेंसेस.
and these are the substances which can be converted into permanent magnets. जितनी भी permanent magnets बनी हुई हैं वो इन्हीं substances को use करके बनती है. Recording के लिए जो tape वगैरह बनती है वो actually magnetic उससे ही होती है. तो these chromium oxide materials are also used in order to form those magnetic tapes and all. तो एक्चुअली क्या होता है इनमें बेटा कि मेटल एटम्स जो होते हैं उनके सारे सॉलिड स्टेट में मेटल एटम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये मेटल आयन सारे एक साथ ग्रुप आसपास के जो मेटल आयंस है वो कलेक्टिवली कंबाइन होके छोटे छोटे रीजन्स बना लेते हैं सॉलिड स्टेट में, विच रीजन्स आर नोन एज डोमेन. एंड हर एक डोमेन में क्योंकि मेटल एटम जो आयन फॉर्म में है उसके इलेक्ट्रॉन्स भी आसपास प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अभी अदरवाइज रेंडमली अरेंज रहते हैं जब वो मेटल अपनी नॉर्मल स्टेट में है. और हर एक एटम, हर एक जो वो ग्रुप है डोमेन, उसको एक आप समझ लो कि वो एक छोटा सा मैग्नेट है. अदरवाइज तो ईच इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली इज टाइनी मैग्नेट, बट मेनी because of very closely packed structures of solid state, very metal large number of metal ions combined to form a group, which group is known as domain. और हर एक डोमेन जो है एक मैग्नेट का काम कर रहा है वहां पे. ठीक है, अब आपने इस अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जिसमें अभी डोमेन कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे, आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. देन व्हाट हैपेंस? हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. ये एक एक डोमेन की इंडिविजुअल उसकी अलाइनमेंट है. जब ये नॉर्मल कंडीशन में थे तो आप सोचो ये किसी भी इस तरह से फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब कहीं पर भी उनकी डायरेक्शन हो सकती है. बट एज सून एज यू प्लेस अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन external magnetic field, all these domains get oriented in the direction of external magnetic field. जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है उसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये खुद को अलाइन कर लेंगे, और ये अलाइनमेंट परमानेंट हो जाती है उस सब्सटेंस के अंदर. इसके बाद आप अगर उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहां से रिमूव भी कर दो, बट दिस अलाइनमेंट विल नॉट एट ऑल बी चेंज्ड. तो इन दिस वे दे बिहेव वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, और इनको आप परमानेंट मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड दिस इज द रीजन एज दे ऑल आर ओरिएंटेड in the same direction, a very large net magnetic moment is created, and these substances are strongly attracted towards external magnetic field. Clear? तो यहाँ पर ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनमें एक्चुअल में पहले से ही बहुत लार्ज नंबर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं. पैरामैग्नेटिक तो ये वैसे भी होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रियारो2, जिनके डोमेन्स जो हैं एक साथ एक ही तरफ अलाइन हो जाते हैं जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. एंड इस तरह से ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट. नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक. एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी लार्ज अमाउंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी तरह से इनके भी आयंस ने डोमेन्स बनाए हुए हैं. डोमेन्स अदरवाइज रेंडमली अरेंज्ड है, बट जैसे ही इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, अलाइनमेंट जो है ना इनका होना, तो इनको भी मतलब एक लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट ये शो करने चाहिए थे जितने इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट क्या होता है, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, इनके जो डोमेन्स है ये अपने आप को एग्जैक्टली ऑपोजिट अरेंज कर देते हैं. एक का डोमेन अगर अपवर्ड है, दूसरे का डाइपोल इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आया, ये इस तरफ, तो आप जितने अगर अपवर्ड हैं उतने ही डाउनवर्ड ड्रॉ करोगे. ये हैं डोमेन्स की अलाइनमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एज यू कैन सी दैट दे हैव इक्वल ऑपोजिट डोमेन्स oriented in magnetic field, so they will cancel out each other's magnetic moment. Hence their net dipole moment, dipole nahi, magnetic moment will becomes zero. So these substances are known as anti-ferromagnetic substances. And last है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इसमें भी ये ऐसे ही सॉलिड्स हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल जो उनके डोमेन्स हैं वो डोमेन्स का ओरिएंटेशन ऐसा हो जाता है कि वो वीकली अट्रैक्टेड, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा जितना फेरो में है. फेरो एंड फेरी में इतना ही डिफरेंस है कि फेरो वाले बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, बट ये जो हैं दे गेट ओरिएंटेड इन दिस वे, कुछ अपवर्ड है और कुछ डाउनवर्ड है, बट इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होते इसकी तरह. मतलब कहीं ना कहीं नेट आपको कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा. तो इन दिस वे दे हैव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, बट दैट इज नॉट इन दैट अमाउंट. उतना लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है जो
फेरोमैग्नेटिक का है। तो फेरीमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन सब्सटेंसेस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस in unequal number. So they are weakly attracted by magnetic field as compared to ferromagnetic. अब एक चीज और है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसपे सब्सटेंस अपने ये बिहेवियर शो करते हैं, और उसके बियॉन्ड अगर हम उनको हीट कर दें तो ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं सारे ही, चाहे वो एंटी फेरोमैग्नेटिक हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं, क्योंकि इन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही। तो हाई टेम्परेचर पे ये सारे सब्सटेंस अपनी ये वाली प्रॉपर्टी लूज कर जाते हैं और पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। और वो टेम्परेचर जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पॉइंट आउट दिस थिंग, ferromagnetic substances can lose, even any type of these three substances can lose their magnetic character, but ferromagnetic substance के लिए वो टेम्परेचर को फाइंड आउट किया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट आयरन, कोबाल्ट वगैरह, आयरन के लिए ये टेम्परेचर 1073 केल्विन है। 1073 केल्विन के बियॉन्ड अगर आप आयरन को हीट अप करते हो, वो अपना फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर, जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक कैरेक्टर है, उसको छोड़ देगा। इट विल ओनली बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो ये टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी फेरोमैग्नेटिज्म छोड़कर पैरामैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेते हैं, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, इन द नेम ओनर ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको ऑब्जर्व किया था। एंड दिस यू कैन से क्यूरी, नाम तो सुना ही होगा अपने साइंटिस्ट का। क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं इसको, जिस टेम्परेचर पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी फेरोमैग्नेटिज्म छोड़कर पैरामैग्नेटिज्म ऑक्यूपाई एक्वायर कर लेता है। क्लियर हो गया ये टॉपिक आपको? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेटा एक दो एग्जांपल्स इसके करने हैं। एंटी फेरो में आपके पास MnO है, और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटाइट, जिसको हम बचपन से पढ़ते रहे ना, आयरन का ओर है। ये एक्चुअली उतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होता है, स्ट्रांग अट्रैक्शन, बट उसको आप परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते हो मैग्नेटाइट। उसमें अदरवाइज नेचुरली जो प्रॉपर्टीज हैं दैट विल बी देयर कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट नॉट दैट मच स्ट्रांग। तो मैग्नेटाइट, Me3O4, फेराइट्स, लाइक ये जो ओर्स है नेचुरली अकरिंग आयरन के, मैग्नीशियम के साथ और ऑक्सीजन के साथ इसका ओर है, फेराइट्स कहते हैं इनको, और ये जिंक के साथ है। तो Fe मतलब ये मैग्नेटाइट के ही और मेटल्स के साथ ओर्स, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस, फेराइट एंड मैग्नेटाइट। तो दीज आर पैरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब बाकी ये तीनों ही टाइप के लिए अगर पूछा जाता है कि इनको हीट करने पे क्या होगा, तो दे विल लूज देयर कैरेक्टर, बिकॉज ये डोमेन्स का जो एकदम रैंडम हो जाता है अरेंजमेंट, तो ये कुछ भी इसमें से बिहेवियर शो नहीं कर पाते, रादर अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके, उसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंसेस के पास नहीं होते, वो हैं डायामैग्नेटिक। They never have unpaired electrons, so they will always repelled by external magnetic field. I hope the topic is clear to you all now. अब इसके बेस पे कुछ short questions हैं, let us discuss that in text questions. And first question is, what type of defect can arise when a solid is heated? Which physical property is affected by it, and in what way? हरी, आप अनम्यूट योरसेल्फ, 2 minutes we have, तो आप ही लोग आंसर्स दोगे अभी। Vacancy defect. Yeah, vacancy defect. And which physical property is affected by it? Density. Yeah, and what way? As electron of the No out बेटा, of the डेंसिटी, atom. हाँ हाँ, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? Number of electrons in a substance is decreased. इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहोगे बेटा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स हियर, बिकॉज एंटायर एटम इज मतलब वेकेंट, लेटेस्ट पॉइंट वेकेंट हुआ है, एटम पूरा गायब हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं करनी। डेंसिटी गेट डिक्रीज, बस डेंसिटी की ही बात करनी है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स आर डिक्रीजिंग, सो डेंसिटी विल गेट डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय, समवन एल्स विल टेल। जिंक सल्फाइड, ट्रांजिशन मेटल, Frankel defect. Frankel defect. And AGBR, Frankel and Schottky. Frankel and Scott. both defects will be shown by AGBR.
Schottky defect as well as Frenkel defect. Explain how vacancies are introduced in an ionic solid when a cation of higher valence is added as an impurity. Because when a cation having lower valency is replaced by a cation with higher valency, so number of ions of lower valency will get decreased. For example, 2 sodium ions when leave their vacant site, 1 strontium ion is added as an impurity. ठीक है, तो वहां पर cationic vacancies generate हो जाती हैं. Clear? So this is what you can write in this question. Cationic vacancies are generated in equal number. जितने आप वो डबल मतलब हायर वैलेंसी वाला एटम ऐड कर रहे हो, अगर 1 और 2 का ही है ना, जैसे 1 वैलेंसी वाला कैटायन हटा और 2 वैलेंसी वाला आया, तो जितने 2 वैलेंसी वाले एटम आपने इंट्रोड्यूस किए हैं उतने ही होल्स एग्जैक्टली इक्वल जनरेट होंगे. बट 2 और 3 के लिए केस डिफरेंट होता है. 1 और 2 के लिए तो सेम है. वैलेंसी 1 और 2 के लिए एग्जैक्टली पर हायर वैलेंट एटम 1 hole will be generated. So cationic vacancies are generated when a cation of higher valency is added. Ionic solids which have anionic vacancies due to metallexis defect develop color. Explain with the help of a suitable example. Can anyone explain which example?